Welcome students, my name is Arsharuk and I am your physics teacher. This lecture is for class 2nd year. Welcome to the online lectures of Real Scholars College. Students, you are studying your chapter number 17, electronics, and you have studied about the diode, the formation and forward and its reverse biasing. And you have seen that in forward biasing, the current flows through the diode or diode is turned on or it conducts electricity through the circuit, and in reverse bias condition the diode is turned off, no current flows through the circuit. Now we will have a little summary of this, you can say, the biasing of diode, which is like if we connect the positive terminal of the battery with p type p side of the p-n junction of the diode. This is n side and this is p type semiconductor here. We will connect the positive terminal of the battery with this side, so we can say the diode is in forward bias condition and the current will flow through the circuit. Okay. But in case of reverse biasing, which means that if we reverse the polarity of the battery, like this, now p type is connected with negative terminal of the battery, so no current will flow through the circuit and the diode will be turned off. This was reverse biasing and forward biasing of the diode. No current is flowing through the circuit now. We will use this concept or this biasing of diode in rectification. But first of all, let's see what is rectification. Rectification क्या है? It is a phenomena or method of converting AC into DC, alternating current into direct current or bidirectional current into unidirectional current. Which means in the circuit, the current which is flowing in both the directions will flow in one direction. We will make it flow in one direction by using the method of rectification or a device which is used as a rectifier, which is none other than this diode. But the question arises, why we are rectifying or why we are using this process rectification, why we are converting AC into DC? So the answer lies here, because DC sources are short-lived, expensive and low powered, just like your cells or batteries. आपने जो बैटरी कभी ख़रीदी होगी, you have seen that, मेरा ख्याल है कि 35, 40, 50 ये रेट्स हैं इनके, और इतनी ज़्यादा देर तक चलती नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट लॉन्ग लिविंग, इट्स शॉर्ट लिव्ड. तो आपके पास जो है वो एक्सपेंसिव भी है, शॉर्ट लिव्ड भी है और थोड़ी सी पावर दे सकती है, जबकि इसकी निस्बत वापडा की जो आपकी स्विचेज़ में बिजली आ रही है वो देखें आप, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की, और वो शॉर्ट लिव्ड भी नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस बिजली जितनी कोई बिजली हासिल करनी है डीसी, तो आपको बहुत बड़ी कोई बैटरी, बहुत ज़्यादा पावर की बैटरी चाहिए होगी. ठीक है, जो कि एक्सपेंसिव भी होगी फिर. अच्छा, तो हम इसलिए जो है वो एसी को यूज़ करते हैं क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव है और लॉन्ग लिव्ड है और लो हाई पावर्ड है और यानी एफिशिएंट है. बट हम सारी चीज़ें एसी से नहीं चला सकते. हमारी कुछ डिवाइसेस को फिर भी डीसी करंट चाहिए होता है, डीसी चाहिए होता है, डायरेक्ट करंट. तो वो हम कहाँ से लाते हैं? हम एसी से ही कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो जब हम कन्वर्जन करते हैं तो वो हम रेक्टिफिकेशन के मेथड से करते हैं. यानी हम बहुत सारी ऐसी डीसी अप्लायंसेस चला रहे हैं जो आपके वापडा के आने वाली जो एसी है उससे चल रहा है, उसी से चल रही हैं, बट उनमें कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, यानी रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं. तो हम डायोड का एज अ रेक्टिफायर यूज़ देखेंगे, द यूज़ ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर. ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. मैं आज के टॉपिक में जस्ट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ.
फुल वेव रेक्टिफिकेशन के दो मेथड्स इंशाल्लाह हम देखेंगे, एक आपकी बुक में और एक बुक से बाहर, बट ईजी होगा। तो अभी आप अपनी बुक्स बेशक नहीं भी खोली अब तक, तो 279 पेज खोलें और ज़रा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को मेरे साथ देखें। अच्छा, इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो डिवाइस यूज़ होगी वो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। फिर तो वो कौन होगा? वो जस्ट एक सिंगल डायोड होगा, ठीक है। एक सिंगल डायोड को हम एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। अब ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है? रेक्टिफिकेशन तो हो गई एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, मतलब अगर सर्किट में दो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको एक डायरेक्शन में फ़्लो करवाना है। बट हाफ वेव का क्या मतलब? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी जो वेव फॉर्म्स हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट्स और वोल्टेजेस की, वो किस तरह की हैं? वो अल्टरनेटिंग इस तरह की है, यानी उसमें हाफ पॉजिटिव साइकिल है और हाफ नेगेटिव साइकिल है। तो हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का हमारा ये मतलब है कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की हाफ वेव को इनटू डीसी, यानी कन्वर्जन ऑफ एसीज हाफ वेव इनटू डीसी। तो ये कैसे होगा? सिंगल डायोड से होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है सिंगल डायोड। हम इसको सर्किट में किस तरह लगाएंगे? कुछ इस तरह से। आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, उसके अंदर आपने एसी इनपुट दी है, VAC वोल्टेज आप देंगे, एसी करंट फ्लो करेगा और स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा, उसके बाद वो सर्किट में आ जाएगा। अब वो जो सर्किट में आएगा तो आपकी जो अप्लायंस लगी है वो कोई लोड कहलाएगा आपका, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? RL। और रास्ते में आपने रेक्टिफायर लगा दिया डायोड, यानी आपने इस अप्लायंस को चलाने के लिए, DC अप्लायंस को चलाने के लिए AC को DC में कन्वर्ट किया बाय प्लेसिंग द डायोड। कैसे कन्वर्ट किया? यहाँ पे होगा ये, जो आपकी कंप्लीट वेव एज इनपुट आई है उसमें से जस्ट हाफ वेव जो है वो आउटपुट पे जाएगी, यानी ये जो आपको दूसरी हाफ नज़र आ रही है ये आप कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें, जो आपकी एक वेव एज एन इनपुट आई है उसमें से आउटपुट पर आपकी जस्ट वो हाफ वेव आएगी, और जो नेगेटिव साइकिल था हाफ वेव का वो नहीं आएगा। ये नेक्स्ट वेव का पॉजिटिव साइकिल है, उस नेक्स्ट वेव का नेगेटिव साइकिल भी नहीं आया, नेक्स्ट वेव का भी पॉजिटिव साइकिल आया, ठीक है। तो हाफ वेव यहाँ पे रेक्टिफाई हुई है, यानी DC में कन्वर्ट हुई है, AC में कन्वर्ट, और दूसरी हाफ वेव नहीं हुई। अब DC में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है? DC में कन्वर्ट होने का ये मतलब है कि आपके पास यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो प्राइमरी कॉइल के अंदर इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर इस डायरेक्शन में भी फ्लो करना चाह रहा है, यूँ, और इसी तरह प्राइमरी कॉइल में यूँ होने के साथ साथ यूँ भी फ्लो करता है हाफ साइकिल के बाद, और फिर वो चाहेगा यहाँ पे भी हाफ साइकिल के बाद यूँ फ्लो करे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह और फिर इस तरह करंट फ्लो कर रहा है बाय डायरेक्शनल, बाय दोनों डायरेक्शन में, यानी पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यूँ करंट फ्लो करेगा, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट यूँ फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। इसी तरह बाकी के सर्किट में भी आपका करंट पहले यूँ हाफ साइकिल के लिए और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बट लोड के फ्लो करेगा नहीं, फ्लो करना चाहेगा, बट ये डायोड उसको फ्लो करने नहीं देगा जब नेगेटिव साइकिल आएगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द लोड। लोड मतलब जो भी आपकी अप्लायंस है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। अभी देखते हैं ये सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपके पास पहले, मैं यहाँ पे आता हूँ, इन वेव फॉर्म्स में आता हूँ, कि आपने इनपुट पे एक बाई डायरेक्शनल सोर्स दी, ठीक है, AC सोर्स, बाई डायरेक्शनल सोर्स, यानी जिसकी वजह से करंट यूँ और यूँ दोनों डायरेक्शन में फ्लो करे। तो उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह है, और एक वेव फॉर्म नहीं होगी, बहुत सारी वेव फॉर्म होगी। जब तक आप इनपुट दे रहे हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स इसी तरह साथ साथ कंसेक्टिवली आते रहेंगे। तो लेट्स सपोज पहले कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो होगा कुछ यूँ कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कुछ इस तरह से। तो जो आपके आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट यूँ फ्लो किया इस डायरेक्शन में,
डायोड के क्रॉस भी करंट यूं फ्लो किया इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइज्ड हुआ। जब पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा, ठीक है, तो डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइज, तो करंट फ्लो हुआ और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ रेजिस्टेंस के क्रॉस, आर एल लोड के क्रॉस। और चूंकि डायोड से करंट फ्लो हुआ है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डायोड के क्रॉस अपीयर होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस यानी को वो हमारे पास कितना होगा, सॉरी, वो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 0.7 वोल्ट्स होगा। यानी कि जो टोटल इनपुट वोल्टेज यहाँ से आई थी उसमें से 0.7 वोल्ट इधर ड्रॉप हो जाएंगे और बाकी के जो वोल्टेज बचेंगे वो कहाँ ड्रॉप होंगे, लोड के क्रॉस, क्योंकि टोटल वोल्टेज गिवन बाय द सप्लाई विल बी यूटिलाइज्ड बाय द अप्लायंसेस जो कि पैसिव एलिमेंट्स लगे हैं, जो कि डायोड और रेजिस्टर हैं। तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ डायोड के क्रॉस जो कि 0.7 वोल्ट है इन केस ऑफ सिलिकॉन, और बाकी जो बच गया वो किधर ड्रॉप हो गया, VL यानी लोड के क्रॉस। और वो किसके बराबर होगा, द करंट पासिंग थ्रू V इज इक्वल टू IR के मुताबिक द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज होगी जो यहाँ पे अपीयर होगी VL। तो वो पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पे ऐसे अपीयर होगी, पॉजिटिव साइकिल के लिए पॉजिटिव वेवफॉर्म आउटपुट पे आ गई, अपीयर होगी, करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड बाइसिंग डायोड में, डायोड क्योंकि फॉरवर्ड बाइस। बट जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा वेव फॉर्म का, यानी यहाँ पे अब यूं पॉजिटिव है यूं नेगेटिव, तो यहाँ से करंट यूं फ्लो करेगा, मतलब फ्लो करना चाहेगा बट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों, बिकॉज डायोड विल बिकम रिवर्स बाइस। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल N टाइप से जुड़ गया, या आप यूं कहें कि नेगेटिव टर्मिनल को हमने P टाइप से जोड़ा है। अब तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो रिवर्स बाइस कंडीशन में आपके पास जब लोड के क्रॉस करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो आउटपुट पे वोल्टेज भी कोई अपीयर नहीं होगी लोड के क्रॉस, यानी VL जो है वो ज़ीरो होगी, आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब सेकंड और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपके पास डायोड के जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है वो करंट ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगी, कोई आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आएगी। तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि वायर वोल्टेजेस हैं। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, ये मैग्नीट्यूड उसका, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ज़ीरो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। इसी तरह जब अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड फिर से ऑन हो जाएगा, डी आपका ऑन हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में फिर से करंट फ्लो करेगा और किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में, लेकिन होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बार बार करंट जो है वो फ्लो कर तो रहा है लोड के क्रॉस, बट वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो जस्ट एक डायरेक्शन में कर रहा है और वो है ये डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब कि आपने अपनी इनपुट पर आने वाली बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को या करंट को, AC को, आपने आउटपुट पे यानी यहाँ से बाई डायरेक्शनल आने वाले करंट को या वोल्टेज को आपने आउटपुट पे जस्ट एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। यानी लोड के क्रॉस बार बार सिर्फ यूं ही करंट गुजर रहा है, थोड़े थोड़े वक्फे से यूं, ठीक है, यूं करंट नहीं गुजर रहा। तो इससे आप कहेंगे कि ये हाफ वेव आपकी रेक्टिफाई हुई है या अल्टरनेटिंग करंट अब DC में। मतलब इस बात का ये है कि अब आप जस्ट एक एवरेज वैल्यू ऑफ DC कंसिडर करें कि जो इसके क्रॉस गुजर रही है कुछ कुछ वक्फे से, ठीक है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ वोल्टेज अपीयर होती है इसके क्रॉस, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ज़ीरो हो जाती है, फिर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ वोल्टेज अपीयर होती है VL जो कि IRL के बराबर होती है। या आप यूँ कहें टोटल में से 0.7 आप माइनस कर दे, जो बाकी बच जाएगी वो यहाँ पे अपीयर होगी। टोटल मतलब जो सप्लाई ने आपको दी है। अब यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में एक चीज़ का डिस्कशन रहता है। रिवर्स बाइसिंग के कंडीशन में आपके पास जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा, VL ज़ीरो है। तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे था वो कहाँ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे था वो कहाँ गया, वो सारा का सारा डायोड के अक्रॉस ड्रॉप आ गया। यानी आपका जो डायोड की वोल्टेज होगी, द वोल्टेज अक्रॉस डायोड VD
इट विल बी इक्वल टू द गिवन वोल्टेज इनपुट वोल्टेज VAC। इस वोल्टेज को आप कहेंगे PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी V मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज V डायोड के क्रॉस होगी रिवर्स बायस की कंडीशन, इनवर्स PIV वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये लास्ट में मैंने लिखा है। ये कौन सी वोल्टेज है? ये वो वोल्टेज है स्टूडेंट्स जो डायोड रिवर्स बायसिंग कंडीशन में विद स्टैंड करता है या उसको फेस करनी पड़ती है, ठीक है, जब वो टर्न ऑफ होता है, ठीक है। ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थी कि आपका बाई डायरेक्शनल करंट जो था, यानी जो प्राइमरी कॉइल के अंदर यूं और यूं दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, वो सेकेंडरी में आने के बाद जस्ट एक डायरेक्शन में, यानी बार बार कुछ कुछ देर के बाद एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी वो डायरेक्ट करंट बन चुका है, उसका कोई एक डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल करंट है, ठीक है। तो इसे आप कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बाय यूजिंग अ सिंगल डायोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी देखनी है। क्यों? क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इतनी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, हमें मज़ीद एफिशिएंसी चाहिए, तो हम फुल वेव को रेक्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इसको बुक से रीड कर लें और ये डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लें और अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। कोई क्वेश्चन हो तो नोट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।